I forgot to unmute my mic. Anyways, good evening, good afternoon, and assalamu alaikum to everyone who are watching us on three platforms, LinkedIn, YouTube, and Facebook. And today, again, Noman Aziz, I'm live with another LinkedIn live session. Today, we have an interesting topic, and we're going to talk about architecture and urban planning. So architecture, it's a branch of engineering. So what kind of career scope and options that you have in this specific branch of engineering, and where can you work, what you need to have in terms of skill set, what kind of qualifications that you need in order to grow in your career, and how can you really make your continuous professional development happen in a way that you grow in this field. So I'm not an expert of this field. That's why I have a special guest with me. I have Sana Malik from Pakistan. So I'm sure once she'll be in, she will introduce herself. Sana, very warm welcome to my live stream. And I think we can kick off with a brief introduction about yourself. Okay, so thank you, Numan, for inviting me in your show as a guest. I'm really privileged to have this honor. My name is Sana Malik, and I am assistant professor in School of Architecture and Planning, University of Management and Technology, Lahore, Pakistan. And I have been in the academia for like 8 to 9 years. And besides this, I'm pursuing my PhD in housing studies from Malaysia. And Sarah, tell us something about your Twitter page. I know you are very active. You have thousands of followers over there. And what you are doing exactly on that Twitter page that you have such a huge number of followership over there? Okay, it is a very interesting journey. First of all, I have started it as a personal page. My profile was like with my name, Sana Malik. In earlier this year, because I have made a Twitter account like in 2011, but I have not been using it very actively. I'm very much active on LinkedIn and other social media like Facebook and Insta. But Twitter, I always I don't like it because मुझे उसका पता नहीं था कि वो कैसे चलता है और उसका मतलब कैसे इतने followers बनते हैं, उसका mechanism नहीं पता था. But one thing clicked in my mind that why all the news channels, whenever they have to give a headline or give a news from some political person or some celebrity media person, they always refer to their Twitter account. Right. That ये tweet आज इमरान खान साहब ने किया या ये tweet जो है वो अली जफर साहब ने किया. So I thought that it means that Twitter is above all the other social media जो है mediums. So that's why I thought that when I'm active on all other social media accounts, why should not I am active on this one? So this was the basic reason, and then I started using it, and obviously wanted to have my followers over there because मुझे लगता है कि academia से और हर टॉपिक पे मुझे बोलने का शौक है और आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो मुझे जहाँ भी कोई बात नजर आती है वांट टू रेज माय वॉइस. तो ऐसे करते करते पहले तो मैंने इसको 6-5 months जो है शुरू में सना मलिक के नाम से ही रखा. बट meanwhile I was actively tweeting on the PhD topic because मेरा वो ऑनलाइन ongoing journey जो है वो चल रहा है इस टाइम, और जिसने मुझे बहुत ज्यादा जो है वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली हर लिहाज से बहुत ज्यादा उसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया है इन द लास्ट 2-3 years. तो उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा था और मेरे ट्वीट्स जो थे वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इंप्रेशंस आ रहे थे. इट वाज अ ह्यूज एंगेजमेंट ऑफ माय PhD ट्वीट्स. So that's why I switched and rebrand my account as a PhD friend, and I'm dedicating it particularly to the PhD tweets.
because I want to it be a raising voice from Pakistan, because Hmm. पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कोई ऐसा पेज और अकाउंट नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो PhD को रिप्रेजेंट कर सके, because there were very interesting accounts like having 100,000 followers and 50,000 followers from Canada or America or other countries. So that's why I thought to go in that direction and make it a leading voice for in perspective on a PhD for my country, Pakistan. So this is Right. the short story behind the Twitter thing. No, no, I think it sounds wonderful. So we have people watching us from all over the world on three platforms. So guys who are watching us out there, uh, please say hello in the comment section and don't forget to mention your location so that we could know where are you joining from. And if you would like to ask any questions, then make use of the comment section, post your comments, questions over there. And in the last section or last segment of our session, we're gonna take your questions, and our session would be kind of combination of Urdu and English language, because there are many people in Pakistan who are watching us. We would like to have some flavor of our national language plus English language, right? So सना, सबसे पहले मेरा आपसे जो सवाल है, मसलन जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं, people who belong to engineering function, they know what architecture and urban planning is all about. But just for a layman or the students who are watching you out there, उनको आप कैसे समझाएंगी कि what are the main function of architecture, engineering, and urban planning? ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका हम बहुत, बिकॉज आई एम अ टीचर इन, और मैं जो आई हैव बीन अ टीचर टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्चर में एडमिशन लेकर आते हैं, तो एंड बेसिक डिजाइन उसमें हम करवाते हैं। उसमें फर्स्ट ईयर में देर इज नो आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टूडियो, बिकॉज Mhm. आर्किटेक्चरल डिजाइन को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट, दे शुड बी बेसिक्स ऑफ डिजाइन दैट इज अप्लाई टू एवरी डिजाइन, इट इज अ ग्राफिक डिजाइन और क्रिएटिव डिजाइन और एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग। तो बेसिकली आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है ना, इसको एक आसान लैंग्वेज में और एक ले मैन के लिए, जिसको आर्किटेक्चर का नहीं पता या जिसको उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता, इसको आप समझ लें कि इसमें आर्ट्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है। दिस इज अ वेरी यूनिक Mhm. फील्ड इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर जो है वो मिक्स है आर्ट का भी बिसाइड्स टेक्नोलॉजी। बिकॉज बाकी अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स और उसके अंदर टेक्निकल थिंग्स बहुत होती हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर एक फ्लेवर आता है आर्ट का, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो ये क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ जो बिल्डिंग्स का रिलेशन बनता है अपने इनहेबिटेंट्स के साथ, तो उसके अंदर आप स्पेसेस को कैसे डिजाइन करती हैं, इसके अंदर और सब फील्ड्स आ जाती हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर है, प्लानिंग है, लेआउट प्लानिंग है, बिल्डिंग फसाद है, उसके बाद फिर आगे आप चले जाएं तो एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर आ जाता Mhm. है। सो इट इज, इसको लेकर शुरू में लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड। और पाकिस्तान में इसके अंदर जो है प्रोफेशनली एक्सेल करना, it's definitely a very difficult thing to do, because यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कल्चर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट को थोड़ा सा सेम ही समझा जाता है। Hmm. we talking in terms of our local culture in Pakistan. तो ये है कि इसके अंदर चैलेंजेस बहुत हैं, एंड पीपल ग्रो एज अ पर्सन इन दिस होल प्रोसेस, बिकॉज हमारी आर्किटेक्चर के अंदर हम केस स्टडीज बहुत ज्यादा करवाते हैं। बच्चों का इंटरेक्शन एक लेटर स्टेज, इनिशियल स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है फील्ड के साथ। और इसके अंदर मल्टीपल जो मैंने अभी आपको डायरेक्शंस बताई हैं, तो सम हाउ एक आर्किटेक्ट जो होता है वो प्रोफेशनल तरीके से बहुत ग्रूम कर लेता है विद इन द 5 years ऑफ एजुकेशन। Hmm. अच्छा, जब हम आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के स्कोप की बात करते हैं, I mean that is confirmed that you need to have some kind of engineering background. I mean it's a field of engineering. Plus, जिस तरह आपने बात की कि you need to have more creativity and innovation skills within yourself if you would like to pursue your long-term career in the field of architecture as compared to other branches of engineering. हम ये नहीं कह रहे कि बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में
या सिविल में आपको इतना ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेशन नहीं होना पड़ता, बट प्रॉब्ली आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में यू नीड टू हैव kind of more creative in order to design or design the infrastructure of the buildings or whatever. So मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिस तरह आपने बात की कि ये स्किल्स जो से ये रिक्वायर्ड हैं, अब अगर हम स्कोप की बात करें, बाज लोग ये समझते हैं कि जी आर्किटेक्चर का काम सिर्फ यही है कि वो बिल्डिंग के नक्शे बनाएगा या किसी कॉलोनी के नक्शे बनाएगा या किसी ब्रिज के नक्शे बनाएगा। तो आर्किटेक्चर के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से सेक्टर्स में अवेलेबल है? आई मीन यू बिलोंग टू एकेडेमिया, अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिया व्हाट एल्स दे कैन डू? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बिकॉज ये मेरे अपने लाइफ जर्नी के साथ बहुत ज्यादा अटैच करता है। बिकॉज मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है, मैंने 2009 में ग्रेजुएट किया फ्रॉम यूईटी। तो उसके बाद मार्केट में देयर वर नॉट एनफ जॉब्स, राइट। बिकॉज आई गेस वो एक क्राइसिस का टाइम चल रहा था 2008 में, जब ग्लोबल क्राइसिस था फाइनेंशियल। बट जनरली अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि सेचुरेशन ऑफ ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, एट दैट टाइम इन आवर टाइम देयर वर few universities who were offering a degree in architecture. It was NC or UET, and recently उस टाइम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। बट इस टाइम हम देखें तो लाहौर के अंदर ही जो है वो 10 से अबव जो है इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं, और उन्होंने फील्ड में निकलना है, और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता हो कि हमें कहाँ कहाँ पे हम फिट इन हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आर्किटेक्ट्स को ये अपने दिमाग में बिठा लें, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो आर्किटेक्चर है ये नीड है हर फील्ड की। ठीक है, चाहे वो आर्किटेक्चरल फर्म हो, चाहे वो मैनेजमेंट की फर्म हो, चाहे वो टेलीनॉर हो, चाहे वो जो है वो जैज हो, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो है वो मैनेजमेंट का या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक यूनिट मिलेगा। क्योंकि जो भी बिल्डिंग होती है उसकी एक पूरी मेंटेनेंस होती है। ठीक है, कहाँ पे पार्टीशन करनी है, कहाँ पे लोगों को बिठाना है, कहाँ पे दरवाजा लगाना है। ठीक है, और अगर बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो कहाँ पे नया बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है, या फिर हमने अपना कहाँ पे नया ऑफिस बनाना है। तो मुझे इन चीजों का पहले नहीं पता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे प्रोफेशंस ने भी इस प्रोफेशन की अहमियत को जाना है, एंड दे हैव रिलाइड started to rely on architects more rather than contractors and interior designer और अदर जो इसके अंदर जबरदस्ती फिट हो जाते हैं लोग। तो ब्रॉडली मैं बताऊंगी, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, उसके बाद आप लैंडस्केप डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, आप लेआउट प्लानर बन सकते हैं, आप कलर कंसल्टेंट बन सकते हैं। बहुत से ये जो हम निपन पेंट्स देखते हैं और डिफरेंट पेंट कंपनीज देखते हैं, उन्होंने कलर कंसल्टेंट्स हायर किए होते हैं टू गाइड देयर क्लाइंट्स कि आपने कौन सा कलर करवाना है, बेडरूम में कौन सा कलर होना चाहिए, ड्राइंग रूम में कौन सा होना चाहिए। एंड अदर देन दिस जो हम डिफरेंट ब्रांड्स देखते हैं, इवन के क्लोथिंग के ब्रांड्स, ठीक है, आउटफिटर्स है, सब सब अब दे आर पोस्टिंग कि हमें आर्किटेक्ट चाहिए, बिकॉज वो अपने इन हाउस आर्किटेक्ट्स रखना प्रेफर करते हैं रादर देन टू हायर कंसल्टेंट्स। So it's just a game of knowledge. You fit in the building construction sector as well, because हमारे स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो साइट सुपरविजन के ऊपर कंस्ट्रक्शन के प्रोसेसेस को भी देखना। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को खुद ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में फिट नहीं होते। दे कैन बी फिट इन एनी डिपार्टमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट दे नीड टू नो कि what they are capable of. This is very important कि उनको ये पता हो। We being teachers keep them determining them कि आप जो है वो एक बड़ी डायनामिक किस्म की फील्ड से गुजर के जो एक प्रोफेशनल बने हैं। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जितनी मेडिकल एजुकेशन मुश्किल है, उतनी ही प्रैक्टिकल साइड पे अगर आप देखें तो एक आर्किटेक्चर की डिग्री भी, इसलिए शायद दोनों 5 years की हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत जबरदस्त किस्म का है। क्योंकि आप हर जैसे मेडिकल की एजुकेशन में आप हाउस जॉब करते हैं, यहाँ पे हमारा थीसिस का एक प्रोजेक्ट होता है जो डेडिकेटेड होता है, जिसमें A to Z लेकर आपने एक बिल्डिंग को ले डिजाइन करना है। तो दिस इज फ्रॉम मी कि इस चीज को आप ना समझें कि आपने सिर्फ आर्किटेक्चर की कर लिया है तो बस आप किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में ही अप्लाई करेंगे। वहां जहां भी आपको
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिले, डिजाइनिंग से रिलेटेड मिले, गो फॉर इट। डोंट लुक एट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इंजीनियरिंग या तो ये जो आर्किटेक्चर स्कोप में नहीं आती। इट डजंट लाइक दिस, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल आर हायरिंग इन हाउस आर्किटेक्ट्स, और उन्होंने पूरे अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। सो इसका मतलब है जहाँ पे भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, देयर इज अ स्कोप फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट। के अलावा कहीं भी, मैं आपको नाम ले रही थी, जैसे आउटफिटर्स है, हम्म। हार्डी है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो जो कंट्री वाइड ऑपरेट करते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उन्होंने अपने फ्रेंचाइज बनानी है, टीसीएस है, व्हाटएवर, जो बहुत ही बड़े पैमाने में फैले हुए हैं, उन्होंने वक्त हम्म। के साथ दे हैव टू ग्रो, दे हैव टू एक्सपैंड। तो उन्होंने अपना एक बिल्डिंग यूनिट, टेलीनॉर है, ये जितनी भी सेल्युलर कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेस बनाने होते हैं डिफरेंट सिटीज, तो दे ऑल हैव दी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, जिसके अंदर आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स और इंटीरियर डिजाइनर्स आप ऑन परमानेंट बेसिस। तो हम्म। ये आप मत घबराएं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर है। स्टूडेंट्स जो नए एस्पायरिंग है टू बिकम आर्किटेक्ट, दे शुड नो कि दे कैन फिट इट एनीवेयर, बिकॉज वी आर वेरी मल्टी डायमेंशनल पीपल, क्योंकि हम मल्टी टास्कर भी होते हैं। डिजाइनिंग भी आ रही है, लैंडस्केप भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी हम्म। कर रहे हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं, एंड देन वी कैन डू रिसर्च एज वेल। So there is multiple domains where you can fit in after graduating as an architect. अच्छा, एक तो चीज होगी कि आपने इंजीनियरिंग की 4 साल की, 5 साल की, वंस यू ग्रेजुएट देन यू कैन यू हैव योर एंट्री टिकट इन योर हैंड, व्हाट आई कॉल अबाउट डिग्री, द डिग्री इज जस्ट एन एंट्री टिकट। तो अब आपको वो Right. एंट्री टिकट मिल गई, आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया, लेट्स से विद अ कंस्ट्रक्शन फर्म और विद अदर इंडस्ट्री जो आपने मेंशन की, हर कंपनी को एक आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। सो Hmm. वंस आई उसके बाद क्या, इफ आई वुड लाइक टू मूव अप इन दी करियर लेडर, मसलन जिस तरह उसके एचआर में हम बात करते हैं दैट यू कैन गो फॉर सर्टेन सर्टिफिकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप बात करते हैं तो आप हमेशा नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नए टूल्स एंड गैजेट्स विच आर कमिंग और बम्बारिंग आवर मार्केट एवरी डे, तो आपको वो Hmm. चीजें सीखनी पड़ती हैं। इस तरह से अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं जिसमें पीएमपी पीएमपी एक मुझे याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर डेस्कॉन बैक इन 2007 एंड 8, सो पीएमपी वाज अ बिग थिंग। पूरी कंपनी में कोई 2-4 बंदे होते थे जिनके पास पीएमपी की सर्टिफिकेशन होती थी, एंड नाउ डेज एवरीबडी गॉट अ पीएमपी सर्टिफिकेशन, राइट? तो Right. आज 2020 में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस, व्हाट काइंड ऑफ अपस्किलिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द पीपल हु बिलोंग टू दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री? अच्छा, इसमें दो डोमेन्स आ जाती हैं, दे आर टू डोमेन्स, ठीक है। हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, मैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगी, मैं बड़ी रियलिस्टिक होके बात करूंगी। मे बी मेरे थोड़े से ऑफ रोड हो जाएं, लेकिन मैं थोड़े रियलिस्टिक डोमेन में बात करूंगी। देयर आर टू टू मेजर ट्रैक्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ हमारा कल्चर ऐसा है कि वी वांट टू बिकम बिजनेसमैन, ठीक है। और अगर आपने अपनी कंट्री में ग्रो करना है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा कि आप एंट्री टिकट लेके एक्सपीरियंस हासिल करें, ठीक है, अपनी फील्ड का, और उसके बाद एक आर्किटेक्ट को नेचुरली, डेफिनेटली उसको 5-10 साल के बाद अपना सेटअप बनाना, उसके लिए जो है वो एक आप समझ लें फाइनल डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। बिकॉज अगर आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर डिजाइन एक आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर स्टाइल है, ठीक है। तो अगर आपने काम सीख लिया, काम एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, किसी के अंडर काम कर लिया, उसके बाद अगर बीइंग एन आर्किटेक्ट आप फील्ड के अंदर अपने नेम को एज अ सिग्नेचर आर्किटेक्चर स्टाइल लेकर नहीं चल पा रहे, तो वो एक आपकी लैक ऑफ स्किल्स को शो करता है। तो डेफिनेटली इसका जो एंड है वो है कि इंटरप्रेन्योरशिप में आके आपने अपना ऑफिस, अपना नेम, अपना ब्रांड, अपने अपना बिजनेस सेटअप करें आप, ठीक है। बिकॉज आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो एक टाइम तक किसी के अंडर काम करता है, उसके बाद उसने अगर अपनी इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो फील्ड में नाम कमाना है, तो ही हैज टू एस्टेब्लिश हिज ओन ऑफिस, हिज ओन ऑफिस। और उसके अंदर फिर वो उसके डिजाइन जो है वो इतने उसके स्टाइल को रेप्लिकेट, जैसे हम नैयर अली दादा साहब की बात करते हैं, वो तो उस जमाने में आए जब इतना कंपटीशन नहीं था, बट द रियल कंपटीशन जो अब है कि जब इतने आर्किटेक्ट्स, इतने लोग निकल रहे हैं, तो आपका हार्ड वर्क ये है कि आप 5 to 10 years फील्ड में लगाएं, देन यू डेफिनेटली गो फॉर योर ओन बिजनेस। देन इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, ये मैं पहले जो मैंने बात की
वो मैंने लोकल सेक्टर की बात की कि अपनी कंट्री में रह के आपने कहाँ आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। हम्म अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू वर्क विद मल्टीनेशनल फार्म्स, ठीक है, तो वहां पे फिर जाके नए जो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, रेविट है हमारे पास, इको डिजाइन है, डिफरेंट हर फील्ड के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे ऑटो कैड एक बेसिक स्टार्ट हुआ था, जैसे आप बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद अगर आपने बिल्डिंग का एनालिसिस करना है, आपने बिल्डिंग को कंट्रोल करना है, बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं। देन हम्म गो फॉर दैट, उन सर्टिफिकेशंस के लिए जाएं, उनके लिए जाएं एंड गो अब्रॉड, वहां से सीखें। और उसके बाद कोशिश करें कि अपना विजन हमेशा से ब्रॉड रख के एक मल्टीनेशनल फर्म में या मल्टी डायमेंशनल फर्म में एंटर होने की कोशिश करें, बिकॉज वो आपको ग्रो करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, rather than if you stick to some स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल ऑफिस। वो स्टार्ट में जरूर करें विद योर प्रोफेशन ऑफ 5 to 10 years, शुरू में जरूर करें, बट आफ्टर दैट अपनी हार्ड वर्क से एंड अपनी डिटर्मिनेशन से अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को एक ब्रांड बना के एंटर इनटू द मल्टीनेशनल फर्म्स एंड देन ग्रो। वहां पे आपको इमेंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोलैबोरेशन विद डिफरेंट अदर कंट्रीज और दूसरे लोगों के साथ। तो इसमें दो ट्रैक्स हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी कंट्री में रह के काम करना चाह रहे होते हैं, तो दे डेफिनेटली एम कि वो पहले काम सीखें कि हम्म पाकिस्तान में काम होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्टर से काम कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे लेबर से कैसे काम निकाला जाता है, ये सारी लैंग्वेज उनको पता होनी चाहिए कि फील्ड में क्लाइंट्स को हैंडल कैसे करते हैं। तो उसके बाद ये सारे टैक्टिक्स समझ के देन दे आर डेफिनेटली फॉर देयर ओन ऑफिस। Right. So, Sana, I think we got some questions coming on LinkedIn platform. So we can take these questions one by one, and I'm gonna take only those questions which are basically relevant to our ओके, discussion. So questions राइट। which are not relevant to our discussion, I can just skip because we do not have enough time to cater all those questions. So we will just take the questions which are very relevant to our discussion. So Idris Khan ने क्वेश्चन पूछा है, what is the role of urban planning and architecture development? Uh, how electrical engineering play a role in urban planning and development in a wider concept? So basically, he would like to know about the linkage between electrical engineering and architecture and urban planning. अच्छा, जैसे एक हमने एक मशहूर एक जो है वो सेइंग है कि आर्किटेक्चर के साथ जो है वो 40 इंडस्ट्रीज जो है वो लिंक इन करती हैं, ठीक है। उसके अंदर आप बिल्डिंग मटेरियल्स को देख लें, आप सैनिटरी के आइटम्स को देख लें, आपने इलेक्ट्रिकल प्लान बनता है आपकी बिल्डिंग के अंदर, सबसे पहली तो बात, ठीक है। सीवरेज का प्लान बनता है, तो ये सारी है, सीवरेज का सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, ठीक है। मैकेनिकल प्लान का जो है वो मैकेनिक्स के साथ के बिल्डिंग के अंदर एयर कंडीशनर जो है वो एचवीएसी का कितना लोड होगा। इलेक्ट्रिकल प्लान बनता है प्रॉपर बिल्डिंग का कि उसके अंदर कहाँ पे आपके स्विचेस आएंगे, कहाँ पे लाइट्स आएंगी। तो ये तो एक बड़ा बेसिक सा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसका बहुत ज्यादा आप समझ लें कि पर्टिकुलर रूल जानना चाह रहे हो, तो जैसे बहुत सी बिल्डिंग टाइप्स होती हैं, जैसे सिक्योरिटी की बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो इतने ज्यादा एफिशिएंट होने चाहिए कि जो बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहे हो, जो एक एक सेंसर्स होते हैं, जैसे आप अगर रूम में अगर आपने स्विचेस नहीं भी है, ठीक है, तो अगर आप किसी रूम में एंटर हो रहे हैं तो बेस्ड ऑन आपने इतनी हाई फाई किस्म की इलेक्ट्रिकल जो है वो लाइट्स लगाई हुई है कि बाय सेंसिंग वो आपकी मूवमेंट से ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं। तो आई गेस बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन है आर्किटेक्चर के साथ। आप ये समझ लें कि आर्किटेक्चर सेंटर है और उसके इर्द गिर्द उसके पेरिफेरी के ऊपर जो है वो ये सारी फील्ड्स आती हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट है और इसके साथ रोल प्ले कर रही हैं। इसी तरह अर्बन प्लानिंग के अंदर भी ऐसा ही है कि जब आप रोड के ऊपर, मुझे क्योंकि मेरी प्रॉपर डोमेन नहीं है अर्बन प्लानिंग, बट स्टिल उसके अंदर ये होता है कि जैसे आप रोड नेटवर्क है, आपके इलेक्ट्रिक जो कार सिग्नल्स हैं और इस तरह से ये सारी चीज अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बगैर इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको इंटीग्रेट किए बगैर आप कोई अर्बन प्लान या आर्किटेक्चरल प्लान बना दें। जी। बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी इदरीस का ही है। बेसिकली आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो पूछना चाह रहे हैं कि जनरल प्रैक्टिसेस इन जीसीसी कंट्रीज एवरी मटेरियल शुड गो टू द आर्किटेक्ट फॉर अप्रूवल, व्हाई इट इज सो, एंड मोस्टली MEP items reviewed by respective engineers
but final approval comes from the architect. So basically वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जीसीसी में नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जितना भी मटेरियल आता है वो सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास आता है फॉर इंस्पेक्शन और अप्रूवल व्हाटएवर, और एमईपी के पास बाद में आता है. So that's what he would like to know, that why that's the general practice in this specific way. अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मटेरियल जो है, अब मैं इसका कनेक्शन आपको बताती हूँ। फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर के साथ हम बच्चों को एक प्रैक्टिस करवाते हैं टेक्सचर की, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि सीन टेक्सचर और फीलिंग वाले टेक्सचर, ठीक है। तो बहुत से आपने मटेरियल्स ऐसे देखे होंगे जिनको आप सिर्फ देखने से आपको पता चलते हैं, अगर आप उनको हाथ लगाएंगे तो आपको वो फीलिंग नहीं आती, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हाथ लगाएं तो उनकी फीलिंग आती है। तो अगर आप लेट से ये जो नॉलेज है, चूंकि आर्किटेक्ट्स को पढ़ाई जाती है, ठीक है, कि कौन सी बिल्डिंग के लिए, कौन सी स्पेस के लिए कौन सा मटेरियल लगना चाहिए, ठीक है। लेट से अगर कोई प्ले एरिया है तो वहां पे आप सॉफ्ट फ्लोरिंग करेंगे रादर देन कि आप वहां पे कंक्रीट ब्लॉक्स लगा दें। इसी तरह अगर कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहां पे कहाँ पे ब्लाइंड पीपल का सेक्शन है, वहां पे कैसी फ्लोरिंग होनी चाहिए, वहां पे कहाँ पे हैंडल आनी चाहिए। तो ये जो सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, ये चूंकि आर्किटेक्चर में पढ़ाई जाती हैं और आर्किटेक्ट्स को इसकी बेटर सेंस होती है, बिकॉज वो बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं विद पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल यूजर कंफर्ट। जबकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में, अच्छा इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना इसको लोड को ले लेगा। सो आई गेस दैट्स द रीजन कि ये वन ऑफ द रीजन मेरे नजदीक तो ये रीजन है कि इस वजह से आर्किटेक्ट्स को जो है वो दे आर गिविंग द राइट टू गिव अप्रूवल ऑफ द सजेस्टेड मटेरियल फॉर दी स्पेस, अगर कोई भी बिल्डिंग अप्रूवल करवाना है। Right, Sarah. Thank you very much for answering these questions. So, इससे पहले कि मज़ीद question chat section में, I'll move towards my next question. So, we all know that fourth industrial revolution gonna happen, or is happening all around us. So, automation is one of the biggest threat to the existing jobs. आप इसको threat कहें, or you would say that automation is a great opportunity for all the jobs to upskill their skill set. तो ऑटोमेशन और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में आप क्या कनेक्शन देखती हैं? आपको क्या लगता है कि जो ऑटोमेशन के आने से आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की फील्ड जो सी है मजीद इनहांस हुई है, और व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एंड यू कैन यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इन योर फेवर इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री? तो इसमें बहुत एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ऑटोमेशन और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से जहां हमें बिल्डिंग्स के अंदर वी सी वेरी जो एडवांस सिस्टम्स वी हैव सीन के पहले लिफ्ट्स नहीं होती थी, एक्सकलेटर्स नहीं होते थे, बट अब वो दे आर कंसिडर्ड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। लेकिन उसके साथ हमारे पास इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट ये पड़ा है कि देयर इज पोल्यूशन, और वहां पे थोड़ी सी एनवायरमेंटल, हमारी इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट किया है। लेकिन लेकिन इस चीज के अंदर जैसे पार्किंग है, पहले पार्किंग प्लाजास जो थे उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको अंडरग्राउंड पार्किंग करनी पड़ती थी या ऑन ऑन दी ग्राउंड पार्किंग, बट अब आपको मशीनरी ऐसी अवेलेबल है जो कि आपकी गाड़ी को उठा के फ्रॉम वन फ्लोर इट कैन पार्क अप टू दी 10th फ्लोर, एंड इट इज वेरी मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी कम स्पेस के ऊपर, जहाँ सिर्फ दो गाड़ियां खड़ी करने को की पार्किंग को समझते हैं, वहां पे आपकी एट अ टाइम 20 और 30 कार्स जो है वो पार्क हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑटोमेशन। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर सिस्टम्स जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी इस तरह से आए नहीं है, तो उसको मैं नहीं कर सकती। लेकिन जो बाहर की कंट्री में हम देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा इस चीज ने इम्पेक्ट किया है, कि सॉफ्टवेयर्स लग गए हैं, ठीक है, आपने आपकी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स आर मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ एन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग के अंदर। और जैसे छोटी छोटी स्पेसेस के अंदर यू कैन हैव योर 300 स्क्वायर फुट है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास आपका डाइनिंग भी हो रहा है, आपका ड्राइंग भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ द स्पेसेस बेस्ड ऑन दी टाइनी फर्नीचर जो फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड होके दे कैन कॉम्पैक्ट द स्पेस। तो आई गेस दोनों चीजें इसकी अच्छी हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो यूजर है उसको कितना कंफर्ट मिल रहा है। अगर तो यूजर का कंफर्ट जो है वो इनसाइड द बिल्डिंग एंड आउटसाइड द बिल्डिंग
अचीव हो रहा है, एंड इट इज अगेन बेस्ड ऑन दी आर्किटेक्ट जो कि पर्टिकुलर बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इस ऑटोमेशन और इस तरह की फैसिलिटीज को जो है वो यूज करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। राइट। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी इज देयर टू हेल्प यू गाइस। बिल्कुल। जिस तरह बाकी सारी फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से बहुत सी चीज़ों में तेज़ी आ रही है, और ये आप हम्म। कह लें कि बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं। रिपीटेटिव टास्क जो उनसे थे, जो जो बार बार आप एक ही काम करने के लिए हाँ, आपको दोबारा से मैनुअल काम करना पड़ता आसान था, कर दिए, टेक्नोलॉजी के। लेकिन अगेन उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को कम कर दिया। बिकॉज अगर आप देखें ना, अगर आप टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दें तो आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। हम्म। मतलब पहले हम जो है वो ड्राइंग्स करते थे, एक स्केच, एक बोर्ड के ऊपर हमने टी स्केयर पकड़ा हुआ है, सेट स्केयर पकड़ा हुआ है, उसके साथ हम कर रहे हैं। अब जो है वो जैसे ऑटो कैड आ गया, स्केचअप आ गया और डिफरेंट 3D मैक्स, सो दे आर इक्वली गुड। बट उससे पहले एक ट्रेनिंग रहना बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट के लिए वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इफ देर आर no availability of any software or technology, हम्म। then they are capable enough to survive, और वो अपने skills की basis पे survive कर सके, and they can make decisions and make solution out of that. वेरी वेल। अच्छा सर, अब जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वाइट बेसिक लेवल का है, कि मसलन बहुत से बच्चे जो अभी स्कूलों में हैं, who are actually in their high school, and they are looking forward कि उन्होंने दी one day they would like to become architect, and they would like to pursue their career, and they want to go for higher studies। तो स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र है, आप क्या सोचती हैं अगर किसी ने अपने माइंड में ये टारगेट रखा हुआ है कि उसने आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में जाना है, तो उस बंदे को कैसे क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कौन से स्किल जोन से हैं उन पे काम करना चाहिए? ड्राइंग जैसे हो सकती है कि मतलब अपनी ड्राइंग पे उनको काम करना चाहिए। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट है कि उनका स्कूल से लेके जो यूनिवर्सिटी तक का सफ़र है, उसमें वो पढ़ाई के साथ-साथ उन स्किल्स पे भी काम करें? एंड हम्म। प्लस इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है कि वंस यू हैव ग्रेजुएटेड, तो हम्म। अब आपका प्लान ये है कि यू वुड लाइक टू परस्यू योर करियर इन एकेडेमिया, एंड फॉर हम्म। एकेडमिक करियर यू नीड टू हैव योर पीएचडी degree. So for PhD, what kind of options are available in Pakistan, and what kind of options are available out of Pakistan? आपका चूंकि experience है, you're also doing PhD from Malaysia. So tell us that how the whole paradigm could work from school to university and university to higher studies. I should talk about my experience, और जनरली मैं उस एक्सपीरियंस से लोगों को बताऊं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, थोड़ा सा ये मुझे क्लियर कर दे, क्योंकि I मेरा mean, बड़ा इंडिविजुअल किस्म का है। मैं उसको जनरली बता देती हूँ। जनरली बता अच्छा। दें, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में हूँ, मैंने एक खाका तैयार किया अपने जहन में कि जी आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद आई हम्म। वुड लाइक टू बिकम एन आर्किटेक्ट। अब मुझे ओके। आर्किटेक्चर बनने के लिए कौन-कौन से जो उनसे पढ़ाई के अलावा और कौन-सी हम्म। चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, तो आई यूज्ड टू थिंक दैट आर्किटेक्चर इज अ फीमेल बेस्ड जॉब। लाइक आपने स्टूडियो में बैठना है, यू हैव टू डिजाइन विद कलर्स एंड डिफरेंट मार्कर्स एंड एवरीथिंग, बिल्डिंग डिजाइन हो गई। But when I actually stepped in the architecture degree, so I came to know by the second year that it is a male oriented. मुझे लगा ठीक है, but हुँ, it is a male oriented field because the designing a building is just one part of, or one side of the picture. उसकी जो दूसरी पिक्चर है वो सारी रिलेट करती है लेबर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, साइट के साथ, ठीक है, जिसके अंदर अगर आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इतना कॉन्सेप्ट नहीं था फीमेल आर्किटेक्ट्स का। होना शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले ज्यादा मेल आर्किटेक्ट्स थे फील्ड के अंदर। तो ये तो सबसे पहले मैं बता दूं स्पेशली गर्ल्स को हु वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट के इट्स नॉट ओनली अ फीमेल बेस्ड जॉब, ठीक है ना। इट्स अ फील्ड डोमेन जॉब, कि आपको फील्ड में भी जाके काम करना है। इट्स नॉट हुँ, ओनली जो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, अगर तो आपने लेट से किसी के अंडर काम करना है तो देन यू कैन, एक किसी हद तक आप ऑफिस में रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी कंसल्टेंसी लेकर चलनी है तो नंबर वन फील्ड, सेकंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल होना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका बिजनेस चलेगा क्लाइंट्स की बेसिस के। क्लाइंट्स आपके पास आएंगे विद द कम्युनिकेशन एंड विद योर वर्क, ठीक है। तो वर्क तो इंसान सीख लेता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
थिंक कि आपकी पीआर हो, और पीआर इज बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, हम्म। कि आप अपने काम को सेल कैसे करते हैं, अपने काम को मार्केट कैसे करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट्स माय सजेशन और मेरी पर्सनल विश है कि, और मे बी इसके अंदर फ्यूचर में जाके मैं काम करूँ, कि मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए आर्किटेक्चर की एजुकेशन के अंदर। बिकॉज इस फील्ड का जो एंड है, आप समझ लें कि इट इज अ कंसल्टेंट जॉब, अ कंसल्टेंसी। उस कंसल्टेंसी के ऊपर प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं, आप अपना काम सेल करें, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, आप ये सारा फील्ड बेस्ड, एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशन। आपकी बहुत ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको, आप कहीं जाएं तो आपको, अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि इस बिल्डिंग को मैं उसकी स्पेस को देखे, उसकी एम्बियंस को देखे। इफ यू आर इन अ होटल तो देखे लॉबी में कैसे स्पेस को सेट किया है, बेडरूम को वहां पे कैसे किया है, लाउंज के अंदर छोटी स्पेसेस होती हैं हमारी, उनको उस स्पेस को कैसे डिजाइन किया। तो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, और इसके ऊपर सोचना शुरू कर देना चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू बी एन आर्किटेक्ट, देन आई हैव टू बी गुड इन the field, I have to be good in the communication, and I have to be good in the observation. This is for the aspiring students. Okay, then the second part of your question, that who has become an architect, ठीक है, और उन्होंने उसके बाद एकेडेमिया में अपने कैरियर को परस्यू करना है, तो डेफिनेटली एकेडेमिया के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैचलर्स डिग्री के बाद मास्टर्स करें और अपनी पीएचडी को करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब एक दफा एकेडेमिया में एंटर हो जाएं, ठीक है, तो आपके अंदर खुद से भी अर्ज होना शुरू हो जाती है। बिकॉज आपको, आप जब किसी को टीच करना है, को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो आप यू एट द सेम टाइम आपका दिल करता है कि आप भी कुछ नया लर्न करें। तो आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब, और इसके अंदर आपको ये मैं मशवरा दूंगी कि आप सिंपल आर्किटेक्चर के अंदर मास्टर्स ना करें। आप कोई एक फील्ड जो आपको अट्रैक्ट करती हो, जिसके अंदर यू थिंक दैट यू कैन परफॉर्म बेटर, आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, और उसके अंदर आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू योर कंट्री और टू द न्यू नॉलेज, ठीक है, तो उस फील्ड को पकड़ें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री मत किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को करें कि बस डिग्री की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कर लिया। बिकॉज ड्यूरेशन जो आप बैचलर्स की डिग्री के बाद गुजारते हैं, आप अपने आप को देखेंगे, व्हेन यू आर एन एफएससी एंड व्हेन यू ग्रेजुएट एज अ बैचलर, तो आपके अंदर 5 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर बहुत चेंजेस आ जाती हैं, और वो बहुत चेंजेस किसी हद तक आपकी डिग्री से भी रिलेट कर रही होती हैं, जो आपके कोर्सेज पढ़े होते हैं, जो आपकी एक प्रोफेशनल और एजुकेशनल जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आई ऑलवेज प्रेफर एंड आई ऑलवेज एडवाइज कि आप आर्किटेक्चर के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आप अगर मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, स्पेशली मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स एक इंटरमीडिएट डिग्री है और पीएचडी तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक बेस्ड होती है। बट अगर आप मास्टर्स को भी एक स्पेसिफिक बेस के अंदर लेकर चलें अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, देन वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है व्हेन यू चूज फॉर पीएचडी। बिकॉज उस टाइम पे आपको पीएचडी के अंदर ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं आप कौन सी फील्ड लूँ या मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको सोचना नहीं पड़ता, जो कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। तो जैसे मैंने मेरा मास्टर्स जो है वो हाउसिंग के अंदर है, फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। तो मुझे उससे एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि हाउसिंग इज अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट, जो कि आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग दोनों के साथ रिलेट करता है, और दोनों में यूनिक कंट्रीब्यूशन होती है। और हाउसिंग रिसर्च जो है वो हमारी कंट्री में वैसे भी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी in the previous decades. So I thought that I should publish research papers and do some research projects so that I can contribute in this domain to my country. तो पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कुछ कम यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, बट आई गेस इसको अगेन सोचना चाहिए कि आर्किटेक्चर के अंदर हेरिटेज भी आ जाता है, सोशल साइंसेज के साथ बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप यूजर बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ब्रॉडर व्यू में देखें आप, चाहे वो आप कंट्री लेवल पे देखें या आप बाहर देखें। तो ये मेरा जो है छोटा सा अपने एक्सपीरियंस से आई वुड लाइक टू शेयर कि इसके ऊपर वर्किंग करें। राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं या देखेंगे इस रिकॉर्डिंग को, देन इट गोना हेल्प देम रियली आउट दैट जो अगर उन्होंने माइंड में ये टारगेट रखा हुआ कि वन डे दे शुड बिकम आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो उनको कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना है अपार्ट फ्रॉम योर। और मेरे ख्याल से ये सजेशन जो होती है ये आपको यूनिवर्सिटीज़ को और इंस्टीट्यूट्स को भी देनी चाहिए। जो भी आपने बात की है कि जो सेल्स और मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए,
So that's what I think you need to teach to all the engineers. उसमें not even sales and marketing plus management का subject जो सा that is very very important. Very important, क्योंकि very जितने भी important. लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आते हैं they are like technical experts. I mean इंजीनियरिंग में वो बहुत अच्छे होंगे, but Yes, once you get into an organization, then you need to have certain sort of people skills. आपको पता yes. होना चाहिए आपने different लोगों के साथ interact हम्म, कैसे करना है. And when you are working बिल्कुल. in a project, then you should know how to deal with people with different mindsets, how to deal with people with different temperaments. और when you move up in हम्म, the career ladder और आप managerial role में आते हैं या आप team leader के role में आते हैं, so then you are not this, only responsible for your own work, you're responsible for the work of the people who are working under your team. yes, तो this is उनको very कैसे मैनेज important. करना है, उनको कैसे एंगेज करना है. तो ये सारी चीजें या तो आप बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, एक आध Yes. बेसिक सब्जेक्ट उसका, ताकि उनको थोड़ा सा theoretical perspective मिले. And once they become part of any organization, then it's the role of the organization to, you know, train those people who हम्म, are coming with technical background so that हम्म, they could have a grasp on people skills as well. हम्म. आई गेस बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस करती भी हैं ऐसी ट्रेनिंग्स, जैसे यूएमटी में भी व्हेन आई ज्वाइंड एज अ लेक्चरर इन 2012, तो दे डिड वेरी वीक लॉन्ग trainings and it really helped. बट हम्म. अगेन जो आपकी सजेशन है कि जो मैनेजमेंट है, और क्योंकि वो चीज आपके कैरियर पर ज्यादा इम्पैक्ट हो रही होती है, टू डील विद द पीपल, टू डील डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट टेम्परामेंट्स, वो आपके कैरियर को ज्यादा इम्पैक्ट करता है व्हेन यू बिकम वंस इन द प्रोफेशनल फील्ड एज कम्पेयर टू योर टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. तो और अगर वो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर करें, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा इन बिल्ट अच्छे तरीके से लोगों के एक अच्छे मैनेजर्स बना सकेगा, और वो दे कैन बी रियली इन मैनेजिंग देयर वर्क एज वेल एज देयर वर्किंग रिलेशनशिप्स. तो दिस इज अ वेरी गुड सजेशन, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरे माइंड में भी है, और इंशाल्लाह ताला इस चीज पे जरूर काम होगा इंशाल्लाह, आर्किटेक्चर के अंदर जहाँ पे मैं यूएमटी के अंदर. जी. तो आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की जिसमें आपने कहा कि आपकी ये सोच थी कि probably it's a female dominated profession, but once you got into this profession then you realize it's like a male dominated profession, just like many other professions, especially in the technical industry. हम्म, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से एक डायलेमा ये भी है कि इवन के जब आप मेडिकल की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो उसमें जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लड़कियां होती हैं, उनकी जो रेशो है वो लड़कों की निस्बत ज्यादा होती है. बट वन यू गो टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो हॉस्पिटल्स में आपको मेल डॉक्टर्स ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल डॉक्टर्स. तो पाकिस्तान का तो मेजर डायलेमा ये है कि बहुत सी लड़कियां जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी में डिग्रीज करती हैं, इंजीनियरिंग में भी बिल्कुल, और बिल्कुल. मेडिकल में भी, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, इवन के HR, हाँ, फाइनेंस, यहाँ पे मैं मार्केटिंग. ये कोट करना चाहूंगी उसमें कि से व्हेन आई वाज 60 अ to स्टूडेंट. 70% they got married and then हम्म, they do not continue their profession. So I think बिल्कुल ऐसे ही. पाकिस्तान की जो हायर एजुकेशन है, इवन के पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा क्वाइट हम्म, सीरियसली कि जब एक डॉक्टर हुकूमत के खर्चे पे बनता है या एक इंजीनियर हुकूमत के खर्चे पे बनता है या इवन एक हम्म, मैनेजमेंट प्रोफेशनल जब हुकूमत के हम्म, खर्चे पे पड़ता है, तो उसके ऊपर हुकूमत की टैक्स पेड, जो लोगों ने टैक्स के भरोसे पे पैसा दिया होता है, उसकी एक खास इन्वेस्टमेंट हुई होती है उसके ऊपर. एंड व्हेन दे हम्म. बिकम मैरिड देन दे जस्ट लीव इट, और वो इन्वेस्टमेंट जो सी है वो बिल्कुल इन वेल चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत से जो मेल हैं, जो लड़के हैं, मेल्स होते हैं, वो बिल्कुल, बेचारे जो उनसे हैं वो अपने डिजायर्ड फील्ड में कैरियर परसू नहीं कर पाते. और बहुत से जो लोग जो बिल्कुल. उनसे हैं वो FSC के बाद बेचारे कुछ नहीं कर पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई नो लॉट ऑफ पीपल, बिल्कुल ऐसे ही है. बहुत से एक्चुअली ऐसे. मैं यहाँ पे ये कोट करना चाह रही थी, जैसे हाँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन यूईटी, तो देयर वर ओनली 4 बॉयज इन आवर क्लास एंड देयर वर 35 गर्ल्स इन आवर क्लास. एंड उनमें से उन 35 गर्ल्स में से आई गेस only 10 are working, 10 to 12 are working, and other are not working. So इसके साथ लेकिन जो बहुत बॉयज सी. होंगे चार के चार, हम्म, चारों के चारों काम कर रहे हैं, हाँ, बिकॉज वो दे हैव चारों के टू अर्न चारों ब्रेड एंड बटर. देवर. तो इसका तो मतलब है इसके कि साथ बहुत सी है ना लिंक्स हैं, इसके साथ सोशल हमारा सेटअप भी थोड़ा सा, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आई नो कि क्या मुश्किलात आती हैं आफ्टर हम्म, मैरिज. समटाइम्स योर हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिव, समटाइम्स योर इन लॉज नॉट सपोर्टिव. तो इसके साथ बहुत सी चीजें लिंक अप करती हैं, एक सोशल डायलेमा आप इसको समझ लें, हम्म, जिसके ऊपर बात करने की भी जरूरत है, और इसको शायद हुकूमती लेवल पे लेकर चलने की जरूरत है, कि अगर किसी को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या अगर वो किसी को अपने इंस्टीट्यूशन में जगह दे रहे हैं या सीट दे रहे हैं,
तो उससे या तो कोई बॉन्ड साइन करवाएं या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाएं कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द बैक टू द कम्युनिटी, एग्जैक्टली। जिस भी फॉर्म में है, बट दे हैव टू आइदर फॉर टू वर्क फ्रॉम होम या फिर बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कैपेसिटी, जो भी वर्केबिलिटी बनती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत डोमेन है, इसके ऊपर भी काम करने की भी जरूरत है। क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी अनफेयर। और आज हम बात करते हैं कि जी वी नीड टू हैव जेंडर बैलेंस, सो समहाउ जेंडर बैलेंस भी करते हैं हम। हमारी यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यस, लड़कास। उसके बाद जेंडर बैलेंस करने के बाद फिर हम इंक्लूजन की तरफ जाते ही नहीं है कि भाई अब इनको पढ़ा दिया है, अब लड़कियां ग्रेजुएट हो गई हैं, अब इन लड़कियों को इंक्लूसिव कैसे करना है इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी चेंजेस लानी है जहाँ पे इनको इनके काम को फैसिलिटेट किया जाए। अगर कोई बिल्कुल। वर्किंग मदर है, शी कैन नॉट कम टू ऑफिस, देन हाउ कैन वी फैसिलिटेट हर बाय प्रोवाइडिंग हर द यस, अपॉर्चुनिटी टू इसके लिए वर्क मेरे फ्रॉम ख्याल से होम। एक अलहदा अलहदा मिनिस्ट्री बननी चाहिए इसके लिए। क्यों? एग्जैक्टली। सो देयर क्योंकि आर ये एक्चुअली ऐसी लेडीज आपको ह्यूज डीप नंबर में मिलेंगी इन एवरी प्रोविंस, इन एवरी सिटी। दे आर एजुकेटेड, और एक फीमेल जितनी अच्छी मैनेजर होती है, शी कैन, शी इज मैनेजिंग अ होम, ठीक है ना, शी इज मैनेजिंग किड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो व्हाई शी कांट वर्क? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Well, Sana, thank you very much. I think थैंक यू। today's live session time is over. It was a very wonderful and interesting discussion with you, and thank you very much for sharing your knowledge and experience with us. And I'm sure it will add value to many people out there who have interest in the field of architecture and engineering. थैंक यू सो मच। आई विश एंड आई होप कि मैंने जो छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने शेयर किया है, वो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, एंड दे हैव एंजॉयड लिसनिंग टू माय एक्सपीरियंसेस, और उनको कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल जाए, किसी एक को भी मिल जाए, तो आई आई थिंक आई हैव डन माय जॉब।